हाय एवरीवन, नमस्कार। आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की स्टैटिक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। We'll be talking about various concepts which were left from the last video, and we will be elaborately discussing about the written and unwritten constitution, right? My name is Sugandha and let's move towards the video. So I have mentioned all these concepts in the form of questions so that ये काफ़ी easy रहता है याद करने में और समझने में। किस तरीके के questions frame हो सकते हैं अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से बात करें या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम बेसिक्स पे जाएंगे। I believe कि question forms, it is very easy for you to understand and remember. So first question which comes in front of us is, why is the Indian Constitution called as fundamental law? Why do we call Constitution as a fundamental law? So Constitution is the basic and organic law of the nation that establishes the conception, character and the organization of the government, right? So now let's briefly go through these terms and try to understand in the reference to constitution, right? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक एंड ऑर्गेनिक लॉ है जो कि इस्टेब्लिश कर रहा है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को, कंसेप्शन को एंड कैरेक्टर को. So let's understand what these terms exactly means. Conception here means it enacts the government. It is the basis. It is the origin. It originates from the constitution. This is what is meant by conception, right? Now, what does character means? Character here means what form of government is being evolved, what form of government is being formed in reference to the constitution. It can be parliamentary, or presidential system of government. It can be unitary or federal system. In subsequent lectures, you will be getting the video of such concepts and you will be clearly able to understand what do these terms exactly means, right? Although it is very evident, नाम से ही समझ में आ रहा है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का क्या मतलब है या यूनिटरी और फेडरल का क्या मतलब है, but I'll be giving you the classes of these terms as well. So character is denoted by parliamentary or presidential, unitary or federal. What is the character? What is the basic character of your government which is derived from the constitution, right? Now let's understand the organization of the government. What do we mean by that? So we really mean by the term of organization, we mean different organs and different layer into which our government is formed, which is executive and legislature. Now, what are the basic functions of these two organs? The basic function of executive and legislature. Legislature makes the law. Executive implements the law. ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो आपके लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, राइट? सो वी अंडरस्टूड द कंसेप्शन, वी अंडरस्टूड द कैरेक्टर, वी अंडरस्टूड द ऑर्गेनाइजेशन. Now, the second question which comes is, what do we mean by the term constitutionalism?
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है? सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर द पावर ऑफ गवर्नमेंट is well defined. Power of the government is well defined rather than being unrestricted, and it remains within the limits and never becomes arbitrary. It should be a democratic form of government. So इन अ कंडीशन जहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अगर फ्लरिश करना है तो देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच डू नॉट एक्ट आर्बिट्ररी, विच एक्ट्स इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट के पावर्स को क्लियरली लिस्ट डाउन किया गया है, क्लियरली बताया गया है संविधान में, और उनकी पावर को लिमिट किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो आर्बिट्ररी एक्ट ना करें. राइट नाउ द prerequisite to achieve the conditions of constitutionalism is having a constitution which can clearly mention the extent of the powers of the government, its duties and grievances, redressal mechanism. तो गवर्नमेंट को लेके एक एक प्री रिक्विजिट क्लियर होना चाहिए, एक एक कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि उनकी पावर क्या है, एक्सटेंट ऑफ पावर क्या है, किस लिमिट की पावर दी गई है उनको, किस एक्सटेंट की पावर दी गई है उनको, और उनके ड्यूटीज क्या है, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म. ठीक है, जहाँ पे किसी भी तरीके के ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जाए, वहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म भी प्री रिक्विजिट में मेंशन किया गया है. सो एक्सटेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स ड्यूटीज मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स मस्ट बी present. However, constitution is only a necessary condition, but not a sufficient condition to achieve constitutionalism. सिर्फ constitution के हो जाने से constitutionalism का concept अचीव नहीं होता. ये सिर्फ एक नेसेसरी प्रीरिक्विजिट है, एक नेसेसरी शर्त है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अचीव करें, एंड इट्स नॉट सफिशिएंट. राइट, व्हाई इज इट्स नॉट सफिशिएंट? बिकॉज इट मस्ट बी अ डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन. आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ प्री रिक्विजिट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की पावर्स को लिस्ट डाउन करके नहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है, बल्कि इट मस्ट बी मेड बाय नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट बाय द पीपल. इट मस्ट बी अ डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड गवर्नमेंट. ठीक है, इट मस्ट बी अ डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड गवर्नमेंट. सिर्फ गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करे, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाए, बट डेमोक्रेटिकली होनी चाहिए. एंड फॉर अ कंडीशन टू बी डेमोक्रेटिक, पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द नेशन मस्ट बी इन्वॉल्व्ड. नाउ द थर्ड क्वेश्चन विच कम्स इज हाउ कैन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बी स्ट्रेंथेंड? कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज फर्दर स्ट्रेंथन बाय ब्रिंगिंग अ सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है विच इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन. Now, separation of powers means there must be clearly mentioned the powers of different organizations, the powers of different bodies, right? So that nobody acts arbitrary. कोई
एक बॉडी किसी अपनी एक्सटेंट ऑफ पावर को बढ़ा के किसी के ऊपर आर्बिट्ररी ना हो, पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर, पीपल ऑफ द नेशन के ऊपर आर्बिट्ररी ना हो, सो दैट ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नेंस आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट और वन बॉडी। सिर्फ एक बॉडी के ऊपर सारी पावर्स ना हो, देयर मस्ट बी क्लियरली अ सेपरेशन ऑफ पावर, सबको स्पेसिफाई होना चाहिए। नाउ what do I mean by this? Let's understand. See, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई टफल ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, हाउ कैन वन इंश्योर? तो सेंटर और स्टेट की पावर्स को अलग कर दिया जाए। ठीक है, अगर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि व्हाट कम्स अंडर द यूनियन एंड व्हाट कम अंडर द स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, तो इससे सेपरेशन ऑफ पावर सिर्फ एक बॉडी के ऊपर, सेंटर भी आर्बिट्ररी एक्ट ना करे और स्टेट भी ना करे। सो देयर हैज टू बी क्लियरली a system of separation of power. Also, there must be a system of checks and balances. We have discussed this concept in last video also, but since this is a very important point for the strengthening of constitution required, so we'll discuss this here as well. So why do we need a system of checks and balances? So that when the power of governance is divided among different organs of the state, all organs keep a check on each other, ensuring no misuse of power, and they maintain a balance. There must not be any misuse of power, and they maintain a balance. Now, there's a very important term, very important concept which is mentioned in the constitution, which is the very, I must say it, ये इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई point नहीं है हमारे constitutionalism को strengthen करने का, having an independent judiciary and judicial review of administrative actions will also strengthen the condition of constitutionalism. Given to some specific rights to people may also keep check on arbitrary behavior of the government. Now, administration के ऊपर, see, आपने clearly list down कर दिया what must be the powers of different organs of the government. आपने separation of power का concept दे दिया, आपने checks and balances का concept दे दिया. Now there must also be an organ, there must also be an body, एक body होनी चाहिए which also must keep a watch on these bodies कि क्या ये अपने arbitrary actions, क्या ये अपने administrative power को use करके कोई arbitrary misuse तो नहीं कर रहे हैं, right? So judicial review and judiciary, एक independent judiciary का concept यही है कि they always keep a watch on such actions, administrative actions के ऊपर watch रखें and ये ensure करें कि they do not misuse their powers, right? So it's a very important point. Now, how does constitution determines the extent of power? कैसे extent of power determine हो रही है government की और किस मैनर में हो रही है कि पावर को एक्सरसाइज किया जाए? There are two examples which I would like to quote. पहले सवाल समझते हैं. जो पावर गवर्नमेंट को स्पेसिफाई की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा जो पावर इंडियन गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को स्पेसिफाई की गई है, उस पावर की एक्सटेंट क्या है, किस हद तक वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो पावर यूज कर सकते हैं, व्हाट मस्ट बी द लिमिट, राइट? तो उसका एक्सटेंट समझते हैं और किस तरीके से वो उस पावर को यूज कर सकते हैं, उस पावर को यूज करके वो अपनी फंक्शनिंग कर सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू एड्रेस. सो आर्टिकल 22 क्लॉज 1, नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without
being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. Nobody can detain a person, nobody can, without telling the reason, without specifying the reason, nobody, no government, nobody can detain such a person, and also he cannot be denied the right of having the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. It's a very good example. If you want to know how does constitution determines, this is the article 22 clause 1. ये भारतीय संविधान का आर्टिकल है जो कि आपके इस पॉइंट को स्ट्रेंथन कर रहा है कि एक्सटेंट क्या होनी चाहिए जो पावर इनको मिलती है गवर्नेंस की. ठीक है. दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 356. इफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल to function according to constitutional provisions, अगर एक स्टेट गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने स्टेट की मशीनरी को प्रोसीड करने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया है, एक राइट दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी. राइट. अगर कोई स्टेट अपनी स्टेट की फंक्शनिंग को, उस स्टेट की गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या एक प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने में असमर्थ रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान, यूनियन गवर्नमेंट को एक पावर दिया है कि वो डायरेक्ट कंट्रोल लें उस स्टेट का और वो उसकी फंक्शनिंग को प्रोसीड करें. राइट. So this is the extent of power. State government can't deny this fact. और इस केस में यूनियन गवर्नमेंट आके उनकी स्टेट की मशीनरी को प्रोसीड करता है, उनके स्टेट की डे टू डे फंक्शनिंग को प्रोसीड करता है अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. Constitution is the supreme law of land and all other laws and customs in order to be valid must conform to the constitution. Constitution हमारा supreme law है. There is no supreme law above constitution. There is no law above constitution. और कोई भी ऐसा law है जिसको valid होना है, जिसको एक valid status रखना है, उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपनी वैलिडिटी कंफर्म करनी पड़ेगी. राइट. उन्हें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो भारतीय संविधान के हिसाब से उस लॉ की फंक्शनिंग कर सकते हैं. दैट लॉ कैन बी वैलिड. राइट. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल? विल अंडरस्टैंड बाय अ एग्जाम्पल. चलिए ये समझते हैं पहले. कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्बिनेशन है ऑफ बीइंग रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल एट वेरियस प्लेसेस. ये दिस सिग्निफाइज ब्रिंगिंग फ्यू चेंजेस. कुछ चेंजेस करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक इजी चेंजेस करके इजी प्रोसेस के साथ अगर हमने चेंजेस कर दिए, वेयर एज अदर चेंजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. कुछ प्रोसेस हैं जो इजी हैं, जिन्हें छोटे मोटे चेंजेस करने, देयर इज अ इजी प्रोसेस टू डू दैट. बट देयर इज अनदर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस which is given under article 368. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है वो दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बताता है जिसके थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं. सो दिस टेल्स कि कॉन्स्टिट्यूशन काफी फ्लेक्सिबल है and it can be rigid in some places, it can be flexible in some places,
और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कंडीशंस, हमारे टाइम के साथ की रिक्वायरमेंट को के साथ हमें देता है, ये जो कंडीशन मिलती है। Now another concept, another part of the constitution which needs to be discussed, बहुत important है, which is the type of constitution. There are majorly two type of constitution, written and unwritten constitution. Written and unwritten constitution. तो नाम से ही एविडेंट है, रिटन का मतलब होगा कि कोडिफाइड होगा। रिटन के केस में आपके जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो कोडिफाइड हैं, वो लिखे हुए हैं एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में। Whereas unwritten constitution के केस में these articles, these provisions are not codified in a single legal document. Constitution itself is supreme. Written constitution जहाँ जहाँ जिस स्टेट में होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है और यही एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करता है। Constitution itself is supreme and it acts as reference point. But unwritten constitution के केस में every law made by the parliament becomes the part of the constitution. इसका मतलब है इस केस में पार्लियामेंट जो है वो आपका सुप्रीम है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम क्योंकि जो लॉ पार्लियामेंट बना रहा है वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। दिस इज द केस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। थर्ड पॉइंट ये है कि जुडिशरी जनरली एंजॉयज वाइड पावर्स इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जुडिशरी जनरली एंजॉयज वाइड पावर, ठीक है। तो जुडिशरी को काफी वाइड पावर्स दी गई हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में। यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जुडिशरी कैन डिक्लेयर एन एनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट और एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। सो जुडिशरी डिक्लेयर कर सकता है किसी भी पार्लियामेंट के इनैक्टमेंट को या एग्जीक्यूटिव के एक्शन को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड अगर उस एक्ट का रेफरेंस, अगर उस एक्ट का बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं कर रहा है तो, ठीक है। वेयर एज अनरिटन के केस में जुडिशरी जो है इट हैज लिमिटेड पावर्स एंड इट कैनॉट डिक्लेयर एन एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ये डिक्लेयर नहीं कर सकता अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, राइट। नाउ अनदर पॉइंट इज there is a clear distinction made in between constitution and other laws. एक बहुत ही clear distinction बनाया गया है written constitution के केस में in between constitution and other laws, whereas unwritten के केस में कोई distinction नहीं है between the constitution and other laws. क्यों? क्योंकि सारे laws जो बने हैं वो बने हैं enactment of parliament की वजह से। parliament enacts a law and that becomes a part of the constitution। तो यहाँ पे parliament supreme है unwritten में, as we have already seen। तो parliament जब enact करता है कुछ तो वो constitution का part बन जाता है, वो law constitution का part बन जाता है। Another point is it can give rise to federal or unitary system. I'll briefly explain these two terms, but we'll have another elaborate session on these topics. Basically ये एक कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक कैरेक्टर है गवर्नमेंट का कि फेडरल सिस्टम जिसमें कि सेंटर और स्टेट की पावर्स को क्लियरली डिस्टिंग्विश और डिफाइन किया गया है। उनकी पावर्स को क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है कि आपकी पावर्स क्या हैं, आपकी पावर्स क्या हैं। एंड यूनिटरी सिस्टम में ओनली यूनियन गवर्नमेंट इज दी हैविंग मोस्ट ऑफ द पावर, ऑल ऑफ द पावर, राइट। यहाँ पे अनरिटन के केस में इफ वी सी
unwritten constitution give rise to only unitary polity, as all the powers of governance are with union body, particularly union legislature which is parliament. हमने ऑलरेडी समझा है अभी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में पार्लियामेंट इज सुप्रीम दैन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हेन इट इनैक्ट्स अ लॉ, वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनता है. दैट इज व्हाई वी सी हियर कि यहाँ पे सिर्फ यूनिटरी सिस्टम है, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम ओवर कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड है, इसको इनैक्ट किया गया था थ्रू अ बॉडी, एक स्पेशल बॉडी बनाई गई थी जो कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस बॉडी को समझते हैं, ठीक है. तो इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द बॉडी, एंड इसने कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन किया, ओरिजिन दिया, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच वाज 26th of January 1950, right? But in the case of unwritten constitution, it is not an enacted one. ये enact नहीं की गई है और ये हमेशा से इवॉल्व हो रही है. क्यों? क्योंकि कोई एक सिंगल बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके क्रिएशन के लिए. कोई एक, it is not created by a single body but was joint effort of many over a period of time. So there is no single body which has evolved, which has originated the concept of unwritten constitution. Last is, it may be rigid or flexible in nature depending upon the situation. And unwritten constitution is always flexible. India के case में, if we understand it by an example, in the case of India, first case is NJAC. It was interfering with the freedom of judiciary and hence NJAC को struck down कर दिया गया था, ठीक है. NJAC was interfering with the independence of judiciary and hence it was struck down from the constitution and section 377 of IPC, right? Third example is Sabrimala issue. तो कई इंस्टांसेस ऐसे होते हैं जबकि कॉन्स्टिट्यूशन काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है, राइट? So this was it for today's video, and in the next video we will try and learn the concept of unitary and federal system. I'll elaborately explain these terms, and then we'll try to learn and understand parliamentary and federal system, and then we'll move on to the concept of preamble, right? So thank you, and I'll see you in the next video.